सर ये जो इस समय आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं महापरिनिब्बाण सूक्त का, तो it almost seems like some of this is meant for people who take the role of a Dhamma teacher. How much does it really apply to, somebody who just wants to stay as a practitioner? For example, they memorize the teachings and then they are able to explain, teach, assert, and then they can also refute the doctrines of others that come up. Yeah, maybe one can take that view. Yeah, certainly one can take that view. One can take that view. I can't answer that question for certainty. My own understanding is that if you're not able to explain to others, you're not understood it. That's the view which I have always verified in me as a teacher, as a professional teacher in IIT. Absolutely clear, and I'm sure Professor Surinder Prasad can explain it. In fact, Einstein used to say that if you have really known something and you can't teach it to a boy, it means you're not really known it. You don't know the subject. So it's not just for teachers. It is just to my own understanding gets sharpened when I look at it from that perspective. So one can take the view, yeah. That's a very apparently that maybe that view could be taken. But when you practice and see that, we know, that if you are a conscientious person, there's a full big if, then you'll not be able to teach anything to anybody unless you yourself understand it. You may make a show and facade, but eventually that conscience will work upon you and force you to understand the subject properly. If I cannot explain it to anybody else, to another friend, to another, it's not a question of formal role of a teacher. I'm not a formal teacher in any sense. I'm just being a friend to all of you. That's all. Each of one of us needs a Kalyan Mitra. And I needed and I got many, directly, indirectly. So if I need a Kalyan Mitra, I should become Kalyan Mitra to others, because that is a part of the Dhammadana. One of the highest forms of generosity is this, sharing what you know with others. So if you want to develop parami of dana, taking upon the role of explaining those who want to be helped is a very important aspect of developing the parami of dana. And that without that, you're not going to get liberated. Being focused entirely on my practice is not a very good state of mind. So there's always this statement, I practice for the benefit of all others, not only my benefit, for benefit of others. You may say it's a Mahayana concept, but it's the truth. If I am focused on completely practicing for my own benefit, I'm including a sense of self, a very subtle sense of self. I am a being who needs to get out of the cycle of birth and death. We'll come to that later, of course. But since you asked this very important question, I've tried to put forth what has been my perspective on this. I have a submission to make. Can I? हाँ बोलिए ना. देखिए जब हम even when we look at the life of great Buddha, he reached a stage where he realized something and then he came forward and wanted to spread it across and let people know what he had achieved. And there were people with him who also were quite, they had a lot of depth in them to understand things which Buddha was saying. We live in a world today where at that time there were not many
diversion, not many, the information also was not able to get to the each corner of the world. Today, things are different. Now, my point of view is that basically this, that not everyone is that much capable of understanding things. There are various personalities, different people have different, की अपनी बुद्धि का स्तर जो है वो जी लिमिटेड होता है, जिसके हिसाब से वो समझते हैं। जी और जी हमारे बीच में भी हम कई सारे ऐसे हैं जो हाँ आपके जी लेवल के नहीं हैं, हम जी साधारण लोग हैं, हमारी जी प्रज्ञा उतनी नहीं है, हम उस अंदाज से नहीं उसको समझ सकते। जी जी ये भी तो एक आ, इसको हम क्या कहें, इसमें उतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देते हुए कि जब जब ध्यान की बात होती है तो उस समय भी भगवान, जैसे आपने अभी पीछे हमें बताया कि कसीना की बात हमने की, अब ये भी एक मेथड है कि आप एक बैठ करके और उस पर ध्यान लगाते हैं उसको, जबकि शायद ये इनिशियल स्टेज है, उसके बाद तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में हर एक इंसान के अलग अलग एक स्टेजेस आती हैं जिसमें उसको समझने की उसकी सामर्थ्य फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी ये अचानक नहीं हो सकता, इसमें काफी समय चाहिए इसके लिए। जी जी और जो आपके पास समझ है उसका एक अलग उसका, क्योंकि आपके में वो बात है, दूसरे में वो बात शायद ना हो कि वो उस तरह से उसको समझ पाए। तो हर एक के लिए एक समय की आवश्यक, मेरा मतलब बेसिकली आई वाज कमिंग प्रश्न ऑन। क्या है? प्रश्न थोड़ा बता दीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन रियली? और इज इट अ कमेंट? इफ इट इज अ कमेंट, इट्स फाइन। Yeah, my question is that जी everyone has a limitation of understanding things as per या his बिल्कुल ठीक बात। present present state of mind. जी So everyone would not be at the same page. That या is ऑफ what I wanted to कोर्स, say. ऑफ कोर्स, सर्टनली, सर्टनली, वेरी ट्रू। इसमें कोई शक नहीं है। I was not at the same page 10 years ago. Certainly That's right. not. That's right. Even now, the first sutta of Majjhima Nikaya, I find it very difficult to understand. But I don't call it boring. I call it, यार मेरे में हो नहीं रहा मेरे से, शायद मुझे और समझने की ज़रूरत है। जो उसमें टर्मिनोलॉजी है, जो उसमें है, उसकी भी मैंने उसकी भी कमेंट्री रिपोर्ट written by Bhikkhu Bodhi, I purchased it, tried to read it, but it was too terse. So I've kept it pending. But that's the very first sutta Majjhima Nikaya, imagine. Obviously, the Sangiti वालों ने देखा होगा. It's very crucial, very important sutta. That's why they made it the first. But it's very difficult to understand. Yeah. So that's true. But if we have to walk the path of Dhamma, we have to understand. We have to understand the teachings properly, especially that which is so crucial. Distinction between right and wrong. जो फंडामेंटल है ना। अच्छे बुरे की पहचान प्रज्ञा की पहली निशानी है। अच्छे बुरे में सब चीज है। अच्छा बुरा वाणी, अच्छी बुरी कर्म, अच्छी बुरी आजीविका, अच्छा बुरा चाल चलन, अच्छा बुरा विचार, अच्छा बुरा दर्शन, हर चीज में प्रज्ञा की जरूरत है हमें। तो वो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। समझ नहीं आता है तो उसमें एफर्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, टू स्टिक ऑन टू इट अगेन एंड अगेन, एंड देन a day comes when we begin to get a intuitive understanding. तो यहाँ पे ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं अपने सभी, और जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन की उनको मालूम है, मैंने मस्ट थैंक देम ऑल रियली। दीपक, पूनम एंड निमिषा, आई थिंक पूनम, some they are here, I think all of them must really thank them। हमने उनकी ऐसी तैसी कर दी, करो प्रेजेंट करो, फिर ये करो, फिर ये चेंज करो, फिर ऐसे करो, वैसे करो। हाउ मच एफर्ट दे हैव डन। जैसे आपने कहा, कितनी कोशिश की उन्होंने बार बार समझने की, बार बार और अभी भी पूरी तरह समझ आया होगा तो मुश्किल है। मैं भी नहीं कह सकता मुझे पूरी तरह समझ में आ गया ये, लेकिन उसकी भावना, उसका जो मुख्य बात है, और क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड दूसरे ट्रेडिशन की रही है, तो आई कैन एबल टू सी यार ये क्या कह रहे हैं, तो आई ट्राई कन्वे देम। तो उस पर्सपेक्टिव से
अभी जब आगे डिस्कस करेंगे, आई ट्राई टू प्रेजेंट इट इन ए मैनर दैट इट डजंट लुक डिफिकल्ट फॉर, इट डजंट मेक सीम कि हम सबको ही बुला भलाई कह रहे हैं, सबको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। बिकॉज आई विल प्रेजेंट समरी ऑल्सो ऑफ टीचिंग्स। तो हम समझेंगे कि हम सब हम सब जो यहाँ हैं भारतवर्ष में, और जो भगवान की शिक्षा को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग व्यू से अभी भी जुड़े हुए हैं। बस हमें मालूम नहीं है कि वो रॉन्ग है। तो तो इसको भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, हमारे फैमिली का, फ्रेंड्स का, सिचुएशन, सोसाइटी का पार्ट है। वो रॉन्ग इस सेंस में नहीं है कि वो उससे हमको वही बुरे आदमी बन जाएंगे। इनफैक्ट उस रॉन्ग व्यू को फॉलो करने वाले हजारों लाखों लोग हैं जो मेडिटेटर से 100 गुना अच्छे हैं, जिनका जीवन हमसे ज्यादा शुद्ध है। ऐसे बहुत लोग हैं उस सो कॉल्ड रॉन्ग व्यू को फॉलो करने वाले। तो उससे आदमी प्रभावित होके क्या उसकी लिमिटेशन है वो भूल सकता है। उसकी लिमिटेशन समझनी है। रॉन्ग व्यू इज ए रॉन्ग, बिकॉज मिथ्या दृष्टि कहा जाता है तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो द इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लैक एंड वाइट, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा था। इसलिए इस सूत्र की चर्चा हमने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि दीन निकाय में और भी कई सूत्र हैं, इससे भी डिफिकल्ट है। संगीति सूत्र भी एक है। वो तो एक ही सूत्र काफ़ी है हमारे को एक साल पढ़ने के लिए। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका उस पर रिस्पॉन्ड क्या करें? या तो हम छोड़ ही दें, या हम कहेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे। और कोई अगर मदद कर रहा है समझाने में, जितना उसको समझ आया वो मदद कर रहा है, तो चलो देखा जाए क्या हो रहा है। दैट इज द वे वी आई हैव टेकन इट ओवर द इयर्स, कि भाई समझ नहीं आ रहा, चलो फिर बाद में कर लेंगे, फिर और कर लेंगे। जब समझ में आ गया तो हमने कहा चलो वी कैन शेयर टू सम एक्सटेंट, जितना समझ आया उतना तो शेयर कर लें। क्योंकि ये मैं अपने घर में भी देखता हूँ, अपने समाज में देखता हूँ, सब में देखता हूँ कि ये हमारे जीवन का पार्ट है। जिसको यहाँ पे स्पेक्युलेटिव व्यूज कहे गए, वो सब हमारे जीवन का पार्ट है। तो इसलिए उनकी एक तो एक एक्सट्रीम हो जाती है, उनकी निंदा कर दो। एक एक्सट्रीम हो जाए उनको बॉदर ही ना करो। दोनों ही गलत है। वी नीड टू सी देम इन देयर राइट पर्सपेक्टिव। उससे क्या सीख मिलती है वो सीख लेनी चाहिए। वी गेट गुड टीच गुड एजुकेशन फ्रॉम दैट। वी शुड सी द प्रॉपर कल्चर, द good aspects of that should be understood, and they are reflected in teaching of Buddha actually. But we are not, we want to ignore it, छोड़ देते हैं किसी किसी कई कारणों से। तो ये एक इस तरह का प्रयास है, and our friends have put in lot of effort, I can tell you lot of effort in trying to understand। क्योंकि मुश्किल है ये, जैसे आपने कहा, दीपक ने, पूनम ने, निमिषा ने बहुत एफर्ट किया है। एफर्ट कई बार तो उनको डिसहार्टन भी किया हमने अपने कठोरता से। बट होल्ड ऑन, हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ताकि ये बहुत डिफिकल्ट, दिस इज द प्रैक्टिस एक्चुअली। हैंडलिंग डिफिकल्टीज ऑफ माइंड इज एज मच ए प्रैक्टिस। दिस इज ऑल्सो मेंटल डिफिकल्टी ना, ऑफ ए डिफरेंट काइंड, which challenges us. So when we get challenged, do we give up or do we hold on? At least hold on, not give up. Hmm? Mental unpleasantness is occurring and we are developing khanti. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, पहले सुन तो लें, फिर दोबारा उससे को दोबारा सिखाओ, दोबारा समझाओ, दोबारा करो। Then when we do that, we develop in the whole process of practice for making the presentation, people are actually practicing Dhamma। जो मुश्किल हो रही है भाई, समझ नहीं आ रहा। अप्रिय वेदना जाग रही, मेंटल माइंड के लेवल पे अप्रिय वेदना जाग रही है। और वो कहती है भागो, छोड़ो इसको। ऊपर से यार ये बूढ़े आदमी कह रहे हैं पढ़ो इसको, चलो पढ़ लो यार, उनकी बात मान लो, करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, तब जाके बात समझ में आती है।
तो वो साधना है एक्चुअली, उसको पढ़ना, उसके लिए तैयारी करना है, साधना है, वही प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन में बहुत काम आती है, क्योंकि अप्रिय परिस्थितियों का सामना कई तरह से करना पड़ता है। गुड, थैंक यू। थैंक यू। सुधा, अभी जो बात हो रही थी to also, practice for the good of oneself and good of others, or in the process trying to explain, for example, what you are doing in terms of meditation and in terms of to others. What I have found is that uh, it's either you have to be so good that you can explain in a manner which can capture the attention of others, or you simply lose a person because it looks so religious like thing and people are not interested in